Morning to all of you. This is Pallavi in front of you, and I am going to tell about the subtraction of fraction. The topic is subtraction of fraction. Students, I have told you in my previous video that there are the different types of fraction: proper fraction, improper fraction, like fraction, unlike fraction. Now come to next point, that is subtraction. Students, you can see in this sum that there are they are having a same denominator. It means 7 by 11 minus 2 by 11 is equal to 5 by 11. You can see easily that like fraction in like fraction, when denominator are the same, then there is no need to take a LCM. आपको LCM लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है. सो डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं इन दिस, यू कैन सी इजीली 11 11, both the fraction of denominator are the same, so you have to write 11 here and minus 7 minus 2, that is 5. Now next is 3 by 20 minus 1 by 20. You can see easily that the denominator are the same, and those fraction having the denominator are the same is called a like fraction. आप देख सकते हैं denominator same है. 3 by 20 minus 1 by 20, यहाँ पे आपने लिख दिया 20, and 3 minus 1 2, that is 2 by 20. And you have to write also reduce from 2 by 20. It is reduced by one table, that is 2. 2 ones are 2 and 2 tens are 20. Now come to next point, that is unlike fraction in subtraction. You can see that 2 by 3 minus 1 by 4. Denominator are the different. Then what we do take a LCM. 3 and 4 we take LCM. 2 2 is 4. फिर 2 का देंगे आप, क्योंकि 2 3 2 से डिविजिबल होता है. 2 1 जा 2, देन आपने 3 का दिया, एलसीएम लिया 2 इंटू 2 इंटू 3. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, दैट इज 12. अब ये जो आपका एलसीएम आया है, यू राइट हियर इन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर, लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन बार. अब आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर था फर्स्ट फ्रैक्शन का, यू हैव टू डिवाइड इट. 3 4 जा 12 एंड मल्टीप्लाई 2. 4 2 जा 8. माइनस किया आप, क्योंकि आप सब सिंबल देख रहे हैं आप दोनों फ्रैक्शन के बीच में. स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये माइनस का सिंबल है. इट मीन्स आपको माइनस करना है, और जब आपको प्लस का दिखे तो फिर आपको प्लस करना है. 8 minus 3 is equal to 5 by 12. Got it, students? Next student, 2 whole 1 by 3 plus 4 1 by 2 plus 1 whole 1 by 4. Student, you can see easily that these three fractions are in the form of mixed fraction. So how we solve it? For change the mixed fraction into improper fraction, what we do, you have to multiply the denominator into whole. For example, 3 2 is 6 plus 1, that is 7 by 3. देख रहे हैं आप, 7 by 3. 3 2 is 6 plus 1, 7 by 3. Next is 2 into 4 plus 1. 2 4 is 8 plus 1, that is 9 by 2. Next is 4 1s are 4 plus 1. 4 1s are 4 plus 1, 5 by 4. Then see the denominator are the different of their fractions, 3 2 1. So what you have to do, take a LCM. You have to take LCM, that 2 1s are 2, 2 2s are 4. फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 1s are 2 and 2 1s are 2. फिर 3 1s are 3. अब ये फुली डिवाइड हो गया. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12. The LCM is 12. Now you have to write 12 here. अब आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है. 3 4s are 12. जब आप LCM में डिवाइड करेंगे और जो आपका आंसर आता है, जो आंसर आएगा आपका 3 4s are 12, यू हैव टू डिवाइड इन न्यूमिनेटर. यानी 4 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4s are 12, 4 आया, उसके बाद आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7s are 28 प्लस 2 6 are 2. जब आप नेक्स्ट फ्रैक्शन पे आए, कम टू नेक्स्ट फ्रैक्शन, दैट इज 2, डिवाइड करेंगे आप, 2 6 are 12, फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 54 माइनस. अब सिंबल्स का प्लस का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका माइनस था, माइनस ही रहेगा. 4 3s are 12, और उसके बाद फिर 3 का जब 5 में आपने न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, देन 15. 82
अब पहले प्लस करेंगे क्योंकि बोर्ड मास के रूल के थ्रू पहले प्लस आता है, तो आपने प्लस किया 28 प्लस 54 दैट इज 82 माइनस 15 अपॉन 12 इज इक्वल टू 67 upon 12 and you have to write in this fraction into mixed fraction that is 5 7 by 12. Next friends, 3 whole 1 by 3 plus 2 1 by 9 minus whole 1 3 by 6. For changing these mixed fraction into improper fraction, you have to do multiply by whole into denominator. 3 3s are 9 plus 1 that is 10 by 3. 9 2s are 18 plus 1 that is 19 by 9. 6 1s are 6 plus 3 9 by 6. Student, the denominator are the different, so you have to take LCM of these different denominators. Write down here 396. And the LCM of these digits are 18, so write down here 18. Now what we do, you have to divide 3 denominator first fraction का 3 है, 3 5 का 3 6 का 18, 6 जो आपका आंसर है उसको आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे that is 60 प्लस 9 2 का 18, 2 आया, अब जो आंसर आता है उसको आपको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है that is 38 माइनस, क्योंकि सिंबल माइनस का था तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे, 6 3 का 18 मल्टीप्लाई करिए 9 का that is 27, यानी आप इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे. जब आपने इन दो को 60 प्लस 38 को ऐड किया, आपका यू विल गेट 98 एंड यू हैव टू माइनस 98 फ्रॉम 27 दैट इज अपॉन 18. माइनस करने पर आपकी जो फ्रैक्शन बनी दैट इज 3 whole 70 by 18. Got it students? Come to next exercise that is your 6.8. In question number 1, a shopkeeper had 60 kilogram of sugar. He sold 50 whole 2 by 3 kilogram of it. Then how many sugar is left after the sale? Students, the total amount of sugar is 90 kilogram. और उसने टोटल में से कितनी सेल कर दी है? 50 whole 2 by 3. स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, दिस फ्रैक्शन इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. फर्स्टली यू हैव टू चेंज इन दिस फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन. अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच शुगर इज लेफ्ट, तो बाकी की अब बची कितनी है ये आपको बताना है. Student, according to the question, the total amount of sugar is 90 kilogram and the amount of sugar is sold, और वो amount कितनी थी जो कि बेच दी थी, सोल्ड कर दी थी, that is 15 2 by 3, 15 whole 2 by 3. So students, you have to change this fraction into proper fraction and what we do, you have to multiply 50 into 3 plus 2. 50 into 3 means 150 plus 2 that is 152. So the improper fraction is 152 by 3 kilogram. अब वो आपसे पूछ रहा है how much sugar is left. शुगर बची कितनी है सेल करने के बाद, तो जब टोटल इतनी थी आपके पास और आपने सोल्ड इतनी कर दी, तो अब वो पूछ रहा है लेफ्ट हाउ मेनी शुगर आर लेफ्ट. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. तो आप क्या करेंगे, टोटल में से जितनी सेल कर दी है उसको लेस कर देंगे और लेस करने के बाद आपका 90 था. फ्रेंड्स, एज वी नो दैट व्हेन द डिनोमिनेटर, जब कुछ भी नहीं होता है तो हम उसको 1 ऐड कर लेते हैं और उसके बाद जब आपने एलसीएम लिया, क्योंकि यू हैव टू सी दैट द डिनोमिनेटर आर द डिफरेंट इन बोथ द फ्रैक्शन, व्हेन एंड 3 एलसीएम लिया तो आपका 3 आया. उसके बाद आपने डिवाइड किया, देन मल्टीप्लाई 270 minus 152 that is 18 by 3 is the answer. Now come to that next question, that is Geeta bought 1 by 2 kilogram potatoes, 3 whole 1 by 4 kilogram tomatoes and 2 whole 3 by 8 kilogram onion. Then what was the total quantity of vegetables she bought? यानी गीता ने पोटैटो इतना खरीदा, टोमेटो 3 होल 1 by 4 खरीदा किलोग्राम, और ओनियन जो बॉट किया वो किया 2 होल 3 by 8. देन you have to find out the total quantity of the vegetable that she bought. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को you have to added these fractions, these kilograms of the vegetables. So according to the question, you know that the quantity of a potato is 1 whole 1 by 2 and the quantity of tomato is 3 whole 1 by 4 and the quantity of onion is 2 whole 3 by
is equal to 3/2 kilogram. 4 into 3 plus 1, that is 13/4 kilogram, and 8 into 2 plus 3 is equal to 19/8 kilogram. Now the question asking you that you have to find out the total quantity of these vegetables. So what we do, you have to the add of these vegetables. So 3/2 plus 13/4 plus 19/8, and see that the denominator are the different in both the fractions. So you have to find out the LCM to finding the addition. 2 2 are 4, 2 4 are 8. अभी भी देखिए 2 से डिविजिबल हो जाएंगे. 2 1 are 2, 2 1 are 2 and 2 2 are 4. अभी ये डिवाइड हो चुका है, अभी ये रह गया है. 2 1 are 2, 2 1 are 2 and 4 are 2. So the LCM is 2 2 are 4, 4 2 are 8. The LCM of these denominator are the 8. अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में. 2 4 are 8, 4 3 are 12, 4 2 are 8, और जब 2 का आपने जब मल्टीप्लाई किया 13 में, दैट इज 26. 8 का आपने जब डिवाइड किया तो 1 1 का मल्टीप्लाई करने पर 19. When you have added these digits, you will get 57/8, and this is the answer. An electricity pole is 11 hole 2/3 meter long. If 2 hole 1/3 meters is under the ground, then how much length of the pole is above the ground? Student, the total length of pole in the given question is 11 hole 2/3, and the under the ground यानी ग्राउंड के अंदर जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, 2 hole 1/3. देन हाउ मच लेंथ, अब वो पूछ क्या रहा है कि पोल के ऊपर यानी अबव द ग्राउंड, पोल के ऊपर जो लेंथ है पोल की वो कितनी है. आपको टोटल पोल की लेंथ दे रखी है और आपको अंडर जो ग्राउंड के अंदर है वो लेंथ आपको गिवन है. अब ऊपर पोल की जो लेंथ है वो कितनी है वो आपको फाइंड आउट करना है. You know that the total length of this pole is 11 whole 2/3, and this is a mixed fraction. You have to change it. That is 11 into 3 plus 2 35/3 meter. And the length of a pole under the ground, और ground के अंदर है जो length वो कितनी है, 2 whole 1/3. So you have to change it. 3 into 2 plus 1, that is 7/3 meter is the length which is under the ground. Now you have to find out the length. How many length are above the ground, यानी ग्राउंड के ऊपर लेंथ कितनी है. तो टोटल लेंथ आपको दे रखी है, ग्राउंड के अंदर लेंथ कितनी है वो आपको पता है. अब आपको निकालना है अबव द ग्राउंड कितनी है. तो आप टोटल लेंथ में से जो ग्राउंड के अंदर है उस लेंथ को आप लेस कर देंगे तो आपकी निकल आई है. अब स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान रखिएगा. रिमेंबर वन थिंग, that the denominator are these fraction are the same, so no need to find the LCM. तो आपको LCM लेने की कोई जरूरत नहीं है. You have to write that 3 here, and minus 35 minus 7 is equal to 28/3, यानी 28/3 मीटर जो लेंथ है उसकी वो ग्राउंड के अबव है, ऊपर है. Next question students, a gas tanker contains 78 kilogram of gas, यानी जो गैस टैंकर में है वो गैस कितना कंटेन करती है अपने अंदर, 78 किलोग्राम. आउट ऑफ विच उसमें से क्या 50 होल 3/4 किलोग्राम इज गैस यूज, यानी उस गैस में से 78 किलोग्राम गैस में से यूज कितनी हुई है, 50 होल 3/4. देन हाउ मच गैस इज लेफ्ट इन ए टैंकर, तो अब टैंकर में कितनी गैस बची हुई होगी. The question is students, you know that the amount of gas in tanker, यानी total amount of gas in tanker, how much amount is, that is 78 किलोग्राम. then amount of gas used, और वो amount कितनी है जो कि यूज कर ली गई है टैंकर में से, that is 50 whole 3/4, and this is a mixed fraction, so you have to change this. 50 into 4 plus 1, that is 203/4, and now you have to find out that amount of gas is left in the tanker, और आपको वो amount find करनी है जो कि टैंकर में रह गई है अभी यूज करने के बाद. तो आप क्या करेंगे, आपको टोटल अमाउंट दे रखी है गैस की, जितनी यूज कर ली है वो आपको बता दिया गया. अब आपको निकालना है बची कितनी है. सो आप क्या करेंगे, आप लेस करेंगे. तो लेस आप टोटल अमाउंट में से जब यूज की हुई लेस करेंगे तो आपको वो अमाउंट निकल आएगी जो कि बची हुई है. जब कुछ भी नहीं होता है डिनोमिनेटर में, तो मैंने आपको बताया था आप 1 लेट कर दो, तो उसके बाद एलसीएम लेने पर 4 ही आएगा. अब जब आपने इसका डिवाइड किया तो 4 आया, और मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर में जब आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 312. इसके बाद आपको माइनस करना है, तो सिंबल ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स. देन आपने फिर से सेकंड फ्रैक्शन का डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 का जब आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो 203 आया.
माइनस करने पर यू विल गेट 109/4 एंड यू हैव टू राइट इन दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन दैट इज 27/1/4, यानी कितने किलोग्राम जो गैस है वो अभी टैंकर में यूज करने के बाद बच गई है. तो दिस इज द आंसर. If 11 hole 5/8 meter of wire is cut from a 15 meter long piece. स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को. बोल रहा है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इतने मीटर जो आपकी वायर की लेंथ है वो टोटल लेंथ में से कट की गई है, यानी टोटल लेंथ कितनी थी 15 थी. देन हाउ मच ऑफ वायर इज लेफ्ट, तो वायर बची कितनी होगी, यानी टोटल कितनी थी आपकी 15, उसने कट कितना किया टोटल में से 11 होल 5/8. दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. एंड देन हाउ मच वायर इज देयर, अब वो पूछ क्या रहा है कि बची कितनी है. Friends, we know that the total length of wire is 15 meter according to the question. Then length of wire that use और जो length wire की use कर ली गई थी वो कितनी थी 11 whole 5/8, that is the 93/8. अब length of wire left. Now ask the क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल लेंथ आपकी 15 थी, यूज आपकी 93/8 कर ली गई, देन हाउ मच वायर इज लेफ्ट. अब बची कितनी है, टोटल दे रखी होता है, यूज करने वाली अमाउंट आपको लेंथ बता दी गई. अब जब लेफ्ट पूछ रहा है तो स्टूडेंट लेफ्ट का मतलब क्या होता है सबट्रैक्शन. तो सबट्रैक्शन कर दीजिए, टोटल में से जितनी आपने यूज की गई हो, ये टोटल है आपके और यूज आपने 93/8 कर ली. आप डिनोमिनेटर देख रहे, डिनोमिनेटर आर द डिफरेंट, तो आप एलसीएम ले, एलसीएम आपका 8 आया, में डिवाइड किया 8 आया, देन 8 का मल्टीप्लाई जब आपने यहाँ न्यूमरेटर में किया देन यू विल गेट 120 माइनस माइनस है सबट्रैक्शन करना है आपको. अब डिनोमिनेटर में जब आपने इसका डिवाइड किया तो आपका 1 आया और जब आपने 1 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई दैट इज यू विल गेट 93 माइनस करने पर यू विल गेट 27/8. द आंसर इज 3 होल 3/8. ये जो आपकी लेंथ थी वो वायर की लेंथ बची हुई है जो कि यूज करने के बाद भी बच गई है टोटल लेंथ में से, दैट इज 15 मीटर. So next question is, a frog took 3 jumps one after one. Frog ने 3 jumps continue की. The length of the first jump is 3/4. यानी first jump की जो length थी वो थी 3/4. And the second was, और second की कितनी थी 3/5 and third was 7/10. Then you have to find the total distance. तो आपको क्या बताना है, आपको total distance बतानी है जो कि frog ने उन 3 jumps में cover की. The length of the first jump of frog is, जैसे कि आपको पता है जो frog की first jump की length 3/4 meter and the length of second jump is 3/5 meter and the length of third jump of frog is 7/10 meter. And what you have to find out, you have to find out the total distance which was covered by the frog, जो कि frog के through cover की गई थी. So student, how we can find out the total distance? You have to add these distance 3/4 plus 3/5 plus 7/10 and see the denominator are the different on both the fractions. So you have to firstly you have to find out the LCM of 4, 5 and 10. तो जब आपने LCM find out किया तो आपका LCM कितना आया 20 आया. तो फिर आप क्या करेंगे 20 को आपने फ्रैक्शन बार के नीचे लिखना है, टू राइट डाउन बिलो इन द ऑफ द फ्रैक्शन बार, और उसके बाद आपने डिवाइड किया डिनोमिनेटर का दैट इज 5 का मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में 15. सेकंड फ्रैक्शन की बात करें तो 5 4 ज़ा 20, पहले आपने डिवाइड किया, फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड एंड आफ्टर दैट द मल्टीप्लाई ऑफ द न्यूमरेटर दैट इज 3 एंड यू विल गेट 12 प्लस जब आपने 10 का डिवाइड किया तो आपको 2 मिला और 2 का आपने मल्टीप्लाई किया है 40 एंड यू विल ऐड दीज डिजिट्स and get 41/20. So this is the total length which was covered by frog in 3 jump. The sum of the sides of a triangle is 18 whole 2/9 centimeter. यानी जो साइड टोटल साइड है, टोटल सम है साइड्स का वो है 18 2/9. 2 साइड्स आर, अगर आपको क्वेश्चन में 2 साइड्स दे रखी हैं 8 2/3 and second one is 4 1/6, then find the measurement of third side. यानी आपको टोटल सम दे रखा है ट्राइंगल की साइड्स का, आपको 2 साइड्स दे रखी हैं और आपको निकालने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल. सो सी लुक एट द ट्राइंगल. सपोज ये आपका ट्राइंगल होता है और आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है द सम ऑफ 3 साइड्स, यानी ये वाली
this one and this one. You have to give it in question is the total sum of the sides of a triangle is 18, 2 by 9 and this is a mixed fraction. You have to change this and you will get 164 by 9. और आपको क्वेश्चन में दे के रखा है किसी भी टू साइड्स का सम दे रखा है और आपको निकालनी क्या है थर्ड साइड निकालनी, यानी कोई भी ट्रायंगल आपको दे रखा है जिसकी थ्री साइड्स का सम है 164 by 9 और आपको दो साइड्स दे रखी है और आपको निकालना क्या है ये वाली साइड निकालनी है। तो टू साइड्स आपको कौन कौन सी है 8 over 2 by 3 that is 26 by 3 and second one is 4 over 1 by 6 and after changing in proper fraction you will get 25 by 6. Now firstly you have to find out the total of the two sides. आपको थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो टू साइड्स दे रखी क्वेश्चन में you have to edit the both the sides and what was the side given in this question that is 26 by 3 plus 25 by 6 and see that denominator are the different. So take LCM दिया आपने 2 3 6 और उसके बाद जब आपने LCM दिया तो आपका LCM कितना है 2 3 6 यानी LCM आया आपका 6. अब आप वही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, फॉलो as well as procedures that 3 2 6 और 2 by आपने मल्टीप्लाई किया that is 52. आपने फिर डिवाइड किया सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का then you will get 1 and multiply by the numerator that become 25. इसके बाद जब आपने ऐड किया both the added these digits then you will get 77 by 6. अब ये जो आपका ये लेंथ जो आपकी आई है वो आई आपकी टोटल सम ऑफ बोथ द साइड्स, ट्रायंगल की दोनों साइड्स का जो सम है वो अब आपका कितना आ गया 76 by मीटर. अब आपको स्टूडेंट्स टोटल साइड दे रखी है और आपने किसी भी दो साइड्स का सम निकाल लिया तो आप थर्ड साइड को इजीली फाइंड आउट, यू कैन फाइंड आउट द इजीली थर्ड साइड. कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल साइड में से आप दोनों साइड्स के सम को लेस कर दीजिए and the third side and finding the third side of a triangle what you have to do, you have to minus the sum of total side from the total sum of the triangle, side sum of the triangle. Now that is 164 by 9 minus 77 by 6. अब देखिए denominator are the different, so you have to take a LCM that is 9 by 6. 3 is a 9, 3 is a 6, then again 3 1 से डिवाइड हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड, 3 is a 9 and 9 is a 18. आपका LCM कितना आया 89. उसके बाद आपको स्टूडेंट्स क्या करना है डिनोमिनेटर का डिवाइड करना है और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है then you will get 328 माइनस करना है आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए और सेकंड फ्रैक्शन में आपको फिर से वही करना है डिवाइड करना है 6 3 18 और 3 का मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर से करना है you will get 231. आफ्टर दैट आपको माइनस करना है, माइनस करने पर आपको मिला 97 by 80 and you have to change in this mixed fraction that is 5 over 7 by 80. So this is the length of the side of a triangle. ये थर्ड साइड की ट्रायंगल थी. Thank you students.